Good morning to all of you. This is Kumar Roshan, STNC Madarasa Type English School. Welcomes you all to the wonderful, pleasant morning and the fresh new in-house training for today. As we all know that according to CBC guidelines, the teachers or the school has to complete in-house training in certain topics as guided by the CBC. So, as guided by the CBC, our school is also conducting the in-house teachers training for certain topics, and to attend this topic, we are having our principal ma'am, our manager sir, our director sir, our teaching as well as non-teaching staff, and I thank all the supporting staff also who are helping out with the materials which we require for the training purpose. We are saying that they are making each and everything available on time, and I thank our principal ma'am, our manager sir especially, who provide us with all the facilities for this in-house training. So, as coming to the point, the topic for today, as decided by us, is in-house teachers training. And to complete this in-house teachers training, we have chosen our first resource person, that is Mr. Dharmendra sir, who is going to educate us on the topic decision making and adolescence. So decision making and adolescence is a very important topic which one should know. We always see that in many of the decisions, the students are not able to take their decisions on time or with the correct matter of time. So, to make those things or make those decisions on time, I solemnly invite our teachers to learn and teach the students how to make decisions, some important decisions which will guide them on their life building career and which will transport them to a new fashionable and electrical world of life. So for those things, I solemnly invite from my core of the heart Mr. Dharmendra sir to come and impart certain knowledge and guide us on the topic decision making and adolescence. Okay, so I welcome Dharmendra sir. So give a big round of applause for Dharmendra sir. Dharmendra sir. I, Dharmendra Prasad Singh, ID number 1409730, your resource person for today training on the topic decision making. Good afternoon, good morning to the principal ma'am, our manager sir and STNC sir and all teachers. I welcome you all. आज मैं आप लोग के बीच डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय के संबंध में कुछ बातों को बताने जा रहा हूं।
इसमें सबसे पहले हमें यह जानना है कि डिसीजन मेकिंग है क्या। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी है। बिना डिसीजन के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से बहुत ही मिलती जुलती कुछ लाभप्रद होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक पाठ्यक्रमों के बीच चयन करता है, जिससे हम निर्णय लेना कहते हैं। अब हमें यह जानना है कि किसी भी योजना के लिए निर्णय किस प्रकार हमें लेना है। पहले योजना को देखना होगा, योजना को समझना है और समझने के बाद उस पर विचार करना है कि हम किस प्रकार का इस पर निर्णय लें जो कम समय में और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। जैसे आयोजन और नियंत्रण का कार्य भी निर्णय लेने से ही बनता है। एक निर्णय लेना चुनाव का एक कार्य जैसा माना गया है, जिसमें एक प्रबंध निर्देशक देता है कि किसी कार्य के करने के लिए किस स्थिति के तहत क्या करना है, क्या जानना है, क्या जानना चाहिए। निर्णय कई संभावित विकल्पों में से चुने गए व्यवहारों के एक पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। निर्णय लेने में 2 से अधिक विकल्पों की जरूरत होती है। एक विकल्प से काम नहीं चलता, कम से कम 2 विकल्प होना जरूरी होता है, तो कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। यदि एक विकल्प हो तो उससे निर्णय नहीं निकलता, इसमें निर्णय नहीं किया जा सकता है। निर्णय किसी कार्य को पूरा करने के लिए चुना जाता है, अर्थात समस्या को सुलझाने के लिए एक निर्णय लिया जाता है, निर्णय का चुनाव किया जाता है। निर्णय को एक निष्कर्ष के रूप में लेना जरूरी होता है। निर्णय लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। निर्णय लेना एक विशिष्ट समस्या को हम करने के लिए कार्रवाई की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया है। पुरुष हो या स्त्री, हर उम्र में जवान रहने का इच्छा लोगों का प्रकट होता है। जब बचपना होता है, उन्हें उत्सुकता होता है जवान लोगों को देखकर कि हम जल्द जवान हो जाए। जब जवान होते हैं तो बुढ़ापे को देखकर उन्हें उत्सुकता होता है कि कभी हम बूढ़ा ना हो, फिर बचपना का समय आ जाए। तो इस तरह के आदमी को उम्र बीतते जाता है, फिर भी उसको जवान रहने की लालसा
उनको लक्ष्य प्राप्ति हो जाता है, किसी ने पिछड़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है निर्णय अपने पहले और बाद के निर्णय से प्रभावित होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले निर्णय ले लेते हैं, लेकिन वह निर्णय लेने से उनकी काम पूरी नहीं होती, वे प्रभावित हो जाते हैं और उनकी प्रभावित होने से निर्णय की श्रृंखला बन जाती है। तीसरा नंबर में प्रत्येक निर्णय की एक समय विशेष पर लिया जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए समय होता है। हमेशा समय का उपयोग कोई भी कार्य करने के लिए नहीं किया जा सकता है। उस समय कार्य के अनुसार समय का भी निर्णय लेने का विशेष टाइम होती है, उसी के मुताबिक उसे निर्णय लेना होता है। निर्णय का महत्व भी बहुत जरूरी है। इस पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। निर्णय से ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। निर्णय से ही योजनाएं बनाई जा सकती है। निर्णय से ही योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। उनका क्रियात्मक हो सकता है। ऊपर से नीचे तक संगठन में निर्णय व्याप्त रह सकता है। किसी चीज की संगठन करने के लिए भी निर्णय की आवश्यकता होती है। बिना निर्णय का किसी चीज की संगठन नहीं किया जा सकता। बच्चों की शिक्षा देने में भी निर्णय की संगठन की आवश्यकता होती है। बिना संगठन के बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जा सकता। उसके लिए भी कुछ उपाय सोचना पड़ता है, उसकी समस्याओं को हल करना पड़ता है। अब नेक्स्ट है निर्णय का चयन हम कैसे करें, इसके बारे में जानना है। निर्णय को 7 चरणों में हम बांटकर हम इसका चयन कर सकते हैं। पहला है समस्या का निर्धारण। जो भी समस्याएं हैं उस समस्या पर हमें निर्धारण करना होगा, तभी हमें चयन हो सकता है। समस्या दूसरा है समस्या की पृष्ठभूमि, इसकी समानताएं, जानकारी और उससे संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण का पता लगाना। बिना उसे पता लगाए हुए हमें समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए हमें पता लगाना पड़ेगा। तीसरा नंबर में कौन सी कार्य सही है या वही है या सर्वोत्तम हो सकती है, इसे निर्धारण करना होता है। कौन सी कार्य जो इसमें सबसे अच्छा हो सकता है, यानी करने का मतलब हम बच्चों को किस तरह से कार्य दे करने के लिए, या बच्चों को किस तरह से हम उसके ऊपर कार्य डालें जिससे कि वह सर्वोत्तम उसके लिए हो, उसके लिए अच्छा हो। चौथा पॉइंट है साध्य और अस्थायी निर्णयों का मूल्यांकन करना। इसके बाद है 6 में निर्णय लेना और उसे लागू करना, यानी निर्णय लेने के बाद उसको सभा में या संगठन में लागू करना। 7वां पॉइंट है पुनर्लोकन करना और आवश्यकता होने पर परिणामों के संदर्भ में निर्णय से संशोधन करना। इसी प्रकार से निर्णय के कुछ प्रकार भी हैं। निर्णय लेने के लिए प्रकार नीचे इस प्रकार हैं। सबसे पहला पॉइंट में आता है राजनीतिक निर्णय। राजनीतिक निर्णय उसे कहते हैं जो एक ही निश्चित संबंधित निर्देश, संस्था की स्थिति और अनुपालन करते हुए बार बार करता है। इस प्रकार के निर्णय की प्राकृतिक में गपशप करने बार बार करता है। इस प्रकार के निर्णय वाले होते हैं जो गपशप करते हैं, समान कार्य प्रकृति के संबंधित होते हैं। कुछ ऐसे प्रकृति के कार्य आते हैं जिसे देखकर लोग आपस में बातचीत करते हैं, अपना विचार विमर्श करते हैं प्राकृतिक के बारे में कि इस मौसम के आने से हमें
लाभ है या हानि, इसके बारे में अपने बैठक में ये विचार विमर्श करते हैं। इससे लाभ होंगे फसल की कि हानि होंगे, या और किसी चीज की हानि हो सकता है ना। जैसे अचानक तूफान आना, जब तूफान आ जाते हैं तो लोगों की क्षति पहुंचती है, फसल से लेके घर द्वार तक क्षति पहुंच जाते हैं, आवागमन की क्षति पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है कार्यात्मक तथा अकार्यात्मक निर्णय। कार्यात्मक निर्णय में दिन प्रतिदिन के उन निर्णयों को सम्मिलित करता है जिनको संपादित करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इसके विपरीत अकार्यात्मक निर्णय किसी विशेष परिस्थिति के उत्पादन होने पर लिए जाते हैं, इनमें से कोई निश्चित विधि नहीं अपनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है दैनिक एवं आधारभूत निर्णय। जिन निर्णयों के विषय में कम सोच विचार की आवश्यकताएं पड़ती है वे समान प्रक्रिया के द्वारा लिए जाते हैं तथा दैनिक निर्णय की श्रेणी में आते हैं। ऐसे निर्णय लेने के लिए अधिक बहुत सोच विचार कर समय दिए जाते हैं, उसमें अधिक ज्ञान की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त अधिक बहुत सोच विचार कर उस पर समय दिया जाता है और निर्णय आधारभूत निर्णयों की श्रेणी में आते हैं। ये निर्णय अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा विवेक पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के निर्णय उच्च श्रेणी के प्रयास के द्वारा लिए जाते हैं। ये निर्णय दीर्घकालीन प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट है संगठनात्मक एवं एकीकृत निर्णय। जो निर्णय संगठन के पर्यवेक्षण में लिए जाते हैं वे संगठनात्मक निर्णय कहलाते हैं। ऐसे निर्णय संगठन के उच्च स्तर से निम्न स्तर को निम्न कोटि की ओर प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत व्यक्तिगत निर्णय वे होते हैं जो एक पदाधिकारी अपनी व्यक्तिगत स्थिति में लेता है, न कि संगठन का सदस्य होने के नाते वे संगठित करता है। इसके बाद है नेक्स्ट है एकाकी एवं सामूहिक निर्णय। जो निर्णय प्रशासन के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं या विद्यार्थी के क्षेत्र में एक ही विद्यार्थी के द्वारा लिए जाते हैं, किंतु प्रशासनिक क्षेत्र की जटिलताओं या विद्यार्थी क्षेत्र की जटिलताओं में अब सामूहिक निर्णय अधिक लिए जाते हैं। तो उसके अनुसार उसे देखे जाते हैं उनमें कितने विकास हो रहे हैं, कितने उत्थान हो रहे हैं, और इसके अनुसार समूह द्वारा किए गए निर्णय एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निर्णय से अधिक अच्छे होते हैं। एक व्यक्ति जो निर्णय लेता है उससे अच्छा सामूहिक रूप से यदि कई व्यक्ति मिलकर उसका निर्णय लेते हैं उसे अच्छा माना जाता है। अब नेक्स्ट है नियोजित एवं अनियोजित निर्णय। R.E. विलियम्स के अनुसार निर्णय के दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एक है नियोजित एवं दूसरा है अनियोजित निर्णय। दोनों को निर्णय के अनुसार प्रशासन वर्ग द्वारा लिए जाते हैं, जबकि संचालन संबंधी निर्णय वे होते हैं जो कि निम्न प्रशासन वर्ग द्वारा लिए जाते हैं।
विकल्प को इसमें चयन किया जाता है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अनेक विकल्प होते हैं जिसमें सबसे अच्छा विकल्प कौन है, इस विकल्प को चुनने के लिए उनको पूर्ण अधिकार होता है, स्वतंत्र वो व्यक्ति होते हैं जो चुनाव करते हैं। तीसरा है अंतिम विकल्प का चयन करने से पूर्व यानी पहले सभी आवश्यकता कार्य संपादित किए जाते हैं। और नेक्स्ट है निर्णयकर्ता अपने विवेक, कल्पना शक्ति एवं भावनाओं का संयुक्त प्रयोग करता है। और नेक्स्ट है निर्णय लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। बिना साधन का कोई भी लक्ष्य का निर्णय नहीं लिया जा सकता है और बिना निर्णय का कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसमें परिस्थितियों के साथ साथ परिवर्तन होता जाता है। आज तक मैं यही देखता आया हूं कि जैसे समय बीतता जाता है नए नए परिस्थितियों को देखने को मिलता है। हर चीज का, मौसम का परिवर्तन, नदियों की परिवर्तन, लोगों का रहन सहन का परिवर्तन, लोगों का पहनावा का परिवर्तन, शिक्षा का परिवर्तन, स्कूल की व्यवस्था का परिवर्तन, हर चीज का परिवर्तन समय के अनुकूल बदलते आ रहा है, बदलते जा रहा है पहले की अपेक्षा। नेक्स्ट है निर्णय प्रक्रिया के समय का अत्यधिक महत्व होता है। समय के अनुसार यदि निर्णय लिया जाता है उसका महत्व अधिक होता है। कुछ लोग निर्णय समय के विपरीत कर लेते हैं, समय होता नहीं है वो चीज का निर्णय कर लेते हैं तो वे महत्व अधिक नहीं होते हैं जो उसे निर्णायक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय में दृढ़ता होती है तथा वह ठोस वास्तविकताओं पर आधारित होता है। निर्णय प्रक्रिया कितने चरण होते हैं, इनके चरण का भी इसमें विश्लेषण किया गया है, जिसमें पहला है समस्या की संख्या। निर्णय लेने के समय बहुत से समस्याएं की होती हैं। अब समस्याओं को देखते हुए निर्णय लेना पड़ता है। कौन सी समस्या जो है सबसे पहले उस पर निर्णय लेना है, कौन सी समस्या जो है सबसे पहले जरूरी है। इस चरण में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में कौन कौन सी समस्याएं हैं। समस्याओं को जानने के लिए उनकी व्याख्या की आवश्यकता है। इसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट है लक्ष्य का निर्धारण। निर्णय निर्माण के प्रथम चरण में उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। प्रशासन को यह देखना होता है कि जनता के हित में अथवा सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से किन लक्ष्यों को प्राप्त करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय की प्रतिपुष्टि। निर्णय के प्रभाव को मूल्यांकन किया जाता है या जानने का प्रयास किया जाता है इसमें कि निर्णय की क्रियान्वित की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है यदि निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है। नेक्स्ट पॉइंट समस्या का पता लगाना है। अच्छे निर्णय के लिए हमें समस्या का पता लगाना होता है। जब तक समस्या का पूर्ण रूप से पता नहीं चलता तो हमें उसमें निर्णय का चुनाव नहीं हो सकता है कि कौन से चुनाव महत्वपूर्ण है, किसके बारे में कदम उठाया जाए कि वह अति आवश्यक निर्णय हो सके। तो इस तरह से अधिकांश निर्णय दो चरणों में
द्वारा अचानक इस्तीफा देने या किसी खराब मौसम द्वारा आपूर्ति में रुकावट या चोरी और धोखाधड़ी की खोज जैसे अप्रत्याशित करने के कारण होने वाली गड़बड़ी। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्मचारी अचानक इस्तीफा दे देते हैं। कार्यालय में काम करते करते उनके मन में क्या भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे इस्तीफा दे देते हैं अचानक बिना सूचना का, उसमें भी इसको धोखाधड़ी कहा जाता है। उसमें भी संगठन का, स्कूल के संगठन का या किसी कार्यालय के संगठन का को प्रभावित करता है। अब है रुकावट आना। अचानक मौसम खराब होने से आवागमन की रुकावट आ जाती है। इस पर हमें निर्णय लेना होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रदर्शन में गिरावट। जैसे अवशिष्ट के स्तर में वृद्धि, खराब मशीन उपयोग, उच्च व्यय, धीरे धीरे कपटपूर्ण गिरावट अक्सर सबसे बड़ी मुश्किलें पेश करती है, क्योंकि उन्हें युक्त संगठन बनाना, अनदेखा करना या नकारात्मक आसान होता है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है योजना से विचलन। जैसे किए गए उपकरणों का चालू करने में देरी। कोई योजना पहले से चल रहा था, किसी कारणवश से बंद हो गया, या कोई संस्था, स्कूल की संस्थाएं चली रही थी, किसी कारण से बंद कर दिया गया, उसको फिर से चालू करने के लिए चाह रहे हैं, तो चालू करने में उसमें भी समस्याएं आती हैं। तो उस पर भी निर्णय लेना है कि हमें किस प्रकार से स्कूल को फिर से चालू किया जाए, किस तरह से शिक्षा दिया जाए, तो वह बच्चा पहले की अपेक्षा फिर से वापस हमारे विद्यालय में लौट कर आ जाए। तो इसके लिए भी निर्णय लेना है। कौन से निर्णय लें, कौन से लक्ष्य का उपयोग करें, ताकि बच्चा जल्द से जल्द हमारे स्कूल प्रांगण में उपस्थित हो जाए। तो इसे व्यक्तिगत संगत बनाना होता है। हर अभिभावक से किस प्रकार से निर्णय लेकर संगति करें, ताकि वह हमारी बातों को समझें और हमारी ओर आकर्षित होकर अपने बच्चे को भेजें। तो इस तरह भी अनदेखा करना या नकारात्मक भी क्रियाएं हो सकती है। कभी कभी आपके पक्ष में निर्णय होता है, कभी कभी विपक्ष में भी होता है। तो इस पर भी सोच समझकर विचार विमर्श करने होते हैं अभिभावक के साथ। नेक्स्ट है योजना से विचलन। जैसे किए नए उपकरणों को चालू करने में देरी करना। इसलिए कभी कभी लोग देरी करते हैं, नियोजित बाजार हिस्सेदार हासिल करने में विफलता आ जाती है। देरी करने से परिस्थापना उत्पादों को विकास में बाधाएं आती हैं। इसलिए किसी भी चीज को अगर देरी करते हैं तो उस पर विचार करना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। जो सोच रहे हैं उसको तत्काल में हमें उपयोग करना चाहिए, ताकि हमें हानि न होकर लाभ की ओर हो। देरी करने से हानि होता है, लाभ नहीं होता। इस पर हमें लक्ष्य पर हमें हावी होना चाहिए और इस पर जल्द निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आमतौर पर नए अवसर, तकनीकी विकास जैसे जैव प्रौद्योगिक या जनसंख्या के आयु वितरण में परिवर्तन और सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन सहित समाजशास्त्रियों परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। अब हमारे लक्ष्य या निर्णय जनसंख्या पर भी है निर्भर। जनसंख्या जितना ही हमारे यहाँ बढ़ेंगे उतना ही समस्याएं आएंगी, और उस समस्या का निदान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उस पर भी विचार करना है कि हमारे देश में जनसंख्या किस प्रकार से कम किया जाए, क्या निर्णय लिया जाए, इसका लक्ष्य क्या हो कि हमारे देश में जनसंख्या कम हो। उनमें कम होने से उनकी पढ़ाई लिखाई, दवा दारू, पहनावा और रहन सहन, आवागमन
पर अच्छे से, है ना, लक्ष्य की प्राप्ति हो। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या का निदान करना। एक बार किसी समस्या की पहचान कर लेने से उस पर निदान करने में आसान हो जाती है। बिना लक्ष्य की पहचान किए हुए समस्या का निदान नहीं किया जा सकता। अब जैसे बच्चा में कौन सी कमजोरी है, टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चा समझ नहीं रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक भी सवाल का जवाब नहीं उसे समझ में आ रहा है, तो वहां पर उसकी समस्या का पर ध्यान देना है कि अब बच्चा को किस तरह से पढ़ाया जाए ताकि हमारी बातों को उससे अवगत हो और प्रश्नों पर फॉलो करे और हमारी प्रश्न का उत्तर समझ में इसे आ जाए। तो इस पर भी पहले उससे निर्णय समस्या पर की पहचान करना, इसमें कौन सी कमजोरी है, क्यों याद नहीं करता है, क्यों नहीं पढ़ता है, क्यों बना कर नहीं लाता है, और तब हमें इस पर निर्णय लेकर फोकस करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद समस्या के वास्तविक कारण का पता लगाना कि समस्या का कारण क्या है। अब उसको कारण का पता लगाएंगे तभी उस पर लक्ष्य का इलाज करने का निर्णय लिया जा सकता है। बिना समस्या का पता लगाए हुए अगर हम लक्ष्य का उपयोग करते हैं तो वो विफल हो जाता है। इसलिए उसको सफलता दिलाने के लिए पहले उसकी समस्या को पर निर्णय लेना होगा। समस्या का वास्तविक कारण हो सकता है कि वो बच्चा जो है घर पर कभी पढ़ता नहीं हो, खेलने में मन लगाता हो, या ये भी हो सकता है कि उसके पास किताब उपलब्ध नहीं हो, ये भी हो सकता है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ रहता हो। तो इस तरह की इसको पता लगाना पड़ता है और तभी हम इसका इलाज कर सकते हैं, अन्यथा ये निर्णय विफल हो जाएगा। इसलिए अच्छे निर्णय के लिए हमें उसे अच्छे इलाज के लिए उसके लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है। समस्या निदान के लिए एक बहुत ही सरल दृष्टिकोण यह पूछना है कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। ये भी एक बहुत ही मुख्य प्रश्न है। तो इस पर भी विचार कर हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6, वैकल्पिक विकसित करना। यानी इसमें बताया गया है कि अगला चरण वैकल्पिक समाधान विकसित करना है। अक्सर प्रबंध पहले उचित समाधान को स्वीकार करते हैं, जो होता है इसे संतोषजनक कहा जाता है। लोग कितने कहते हैं जो होता है सब ठीक होता है, ये संतोषजनक है, जो होता है सब ठीक नहीं होता। अगर ऐसा होता तो लोग अपने कर्म की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए इससे संतुष्टि नहीं मिलता। संतुष्ट होने का अर्थ है एक ऐसे समाधान का स्वीकार करना जो न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता है और यह अनुकूलन के विपरीत होता है। जो समाधान की स्वीकृति है, जो सर्वोत्तम संभव उत्तम प्रदान करता है। शीघ्र से पता चलता है कि अधिकांश प्रबंधक समाधानों के बजाय संतोषजनक समाधान स्वीकार करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मूल्यांकन। यह जांचने के लिए कि कार्यान्वयन प्रक्रिया की निराकरण की जाननी चाहिए कि क्या कोई निर्णय अच्छे परिणाम देता है या नहीं। कभी कभी निर्णय को लागू करने के तरीके को समायोजित करना आवश्यक हो जाता है, या निर्णय को स्वयं समायोजित करना आवश्यकता नहीं भी पड़ता है। विषय परिस्थितियों में बाद की घटनाओं के आलोकन के निर्णय को छोड़ना या उलटना भी आवश्यकता हो सकता है। मूल्यांकन के दौरान सीखे गए
उपयोग बाद के निर्णयों में सुधार के लिए किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, एक विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक मूल्यांकन प्रत्येक विकल्प के सापेक्षा मूल्य को प्रकट करेगा और उस विकल्प का चयन किया जाता है जो लक्ष्य से अधिकतम योगदान देकर चयन अंतिम निर्णय लेने की बिंदु पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से विकल्प का चयन करते समय हमें निम्नलिखित दृष्टिकोण का उपयोग भी करना चाहिए। निम्नलिखित दृष्टिकोण में आते हैं अनुभव। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके बारे में अनुभव होना अति आवश्यक है। प्रयोग, हम उस पर कैसे प्रयोग किया जाए इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। अनुसंधान, कैसे हम अनुसंधान करें इस पर भी विचार करना अति आवश्यक है। और विश्लेषण, किस प्रकार से विश्लेषण करना चाहिए इस पर भी अधिक फोकस करने की जरूरत है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नियम को लागू करना। नियम को हम कैसे लागू करेंगे? निर्णय के निष्पादन में विस्तृत योजनाओं का विकास, निर्णय का संचालन, निर्णय की स्वीकृति प्राप्त करना, निर्णय को प्रभावी कार्यों में परिवर्तित करने के लिए समर्थन और सहयोग प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण विकसित करना शामिल है। निर्णय से किसी भी योजना को ठीक किया जा सकता है, किसी भी विचार को अच्छे विचार में बदला जा सकता है। प्रचार के निर्णय की घोषणा और संचार शामिल होता है कि अधिक से अधिक सूचित किया जाए कि वैकल्पिक विकसित किस प्रकार से किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट अनुभव होना है। मैंने पहले भी बता चुके थे दृष्टिकोण के माध्यम के विकल्पों के चयन के अनुसार अनुभव होना अति आवश्यक है। बिना अनुभव का, बिना प्रयोग का, बिना अनुसंधान का निर्णय लेना अधूरा है। इसलिए इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अनुभव। अनुभव भविष्य के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, हमें रास्ता भविष्य के लिए दिखाता है, हमें आगे क्या होने वाला है इसके बारे में वो विचार विमर्श करता है। प्रबंधक पिछले कार्यों, उनकी सफलताओं असफलताओं के अनुसार करते हैं। भविष्य का वातावरण के संदर्भ में उनका विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोग। प्रयोग में प्रत्येक विकल्प को व्यवहार में लाया जा सकता है। और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाता है। यह तरीका मामला है जो कि निर्णय लेने की स्थिति के हर अब आप लोग के बीच मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं। अब वीडियो पर आप लोग ध्यान देंगे। उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला तो क्या होता है, जो बोलने वाला इंसान होता है उसको मजा से नहीं आता। वो सोचता है मन में कि यार ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है मुझको, तो आगे से उस इंसान से बात करने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा।
तो अगर आप एक फेवरेट बनना चाहते हो तो जब भी कोई आपसे बात करे तो उसकी बात को ध्यान से सुने और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहें उसको। टिप नंबर 2, ऑलवेज स्माइल। एक इंसान था, उसकी शादी को 18 साल हो चुके थे। वो अपनी वाइफ से ज्यादा बात नहीं करता था, ना उसको देखकर स्माइल करता था, ना वो लोगों से बात करता था और ना ही लोग उससे बात करते थे। हर कोई ये सोचता था कि वो एक बहुत ज्यादा खड़ूस इंसान है, इसलिए उससे कोई भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता था। तो एक बार वो एक वर्कशॉप अटेंड करता है, तो उस वर्कशॉप में वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। तो उसको एक सलाह दी जाती है, एक एक्सरसाइज कराई जाती है कि आपको हर घंटे किसी ना किसी को देखना है इस वर्कशॉप में या बाहर, और उसको देखकर स्माइल करनी है। तो वो कहता है ओके। तो एक दिन वो क्या करता है, नेक्स्ट डे अपनी वाइफ को देखकर सुबह स्माइल करता है। तो उसकी वाइफ एकदम शॉक हो जाती है कि आज इन्होंने मुझे स्माइल कैसे करी। तो वो उनसे बात करती है, तो वो बोलते हैं कि कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे से ये रोज होगा। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपने घर से बाहर निकलता है इंसान, और रोड पे आते आते हर इंसान को देखकर स्माइल करता है जो भी उसके सामने दिखता है उसको, और हर कोई उसको बैक में स्माइल करता है। फिर वो इंसान अपने ऑफिस जाता है, ऑफिस में हर किसी को स्माइल करता है, उसके कोलीग्स उसको स्माइल बैक करते हैं, और ऐसा कुछ दिनों तक चलता है। फिर हर करके लोग उससे बात करना भी स्टार्ट कर देते हैं और उसको बताते हैं कि हम आपको पहले बहुत ही खड़ूस समझते थे, और इन रियल अब वो लोग उसको अपना फेवरेट मानने लग जाते हैं। तो आप जब भी लोगों से मिले तो उनको देखकर स्माइल जरूर करें। स्माइल करना बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन वो फेक स्माइल नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी से मिले तो हल्की स्माइल करें और फिर हल्के हल्के अपनी स्माइल को लाउड करते जाएं, तो उससे आप लोगों की फेवरेट बन जाओगे। थर्ड टिप है मैच द मूड। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मूड बहुत ही ऑफ होता है और हम उदास होते हैं अपने पर्सनल किसी रीजंस को लेकर, और हमारे पास एकदम से कोई आके एक्साइटमेंट में अपनी कोई एक्साइटिंग बात बताने लगता है या कुछ एक्साइटिंग कुछ करने लगता है हमारे सामने, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। हमें उस टाइम उससे थोड़ी दूरी बनाने का मन करता है। तो उससे क्या होता है, सामने वाले पर भी इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का, और उसे हमारा नेचर कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ऐसा हमारे साथ भी हुआ है जब हम एक्साइट होकर किसी के पास गए हैं। तो आप हमेशा अपना मूड सामने वाले के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट करें। हाँ, मैं मानता हूँ कि कई केस में ऐसा होता है कि हमारे साथ बहुत ही बुरी घटना घटी होती है और हम उसके बिल्कुल उसके वे में रिएक्ट नहीं कर सकते उसको, लेकिन थोड़ा बहुत आप ट्राई करें। उससे क्या होगा, आपका मूड भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और सामने वाले को काफी अच्छा लगेगा आपका नेचर कि आपने उसकी उस चीज को सपोर्ट करा। टिप नंबर 4, नो वन लाइनर्स। जब भी कोई आपसे बात करे तो अधिकतर बात यही होती है कि आप कैसे हैं, तो आप एक शब्द में जवाब देते हैं गुड। आप कहाँ रहते हैं, मैं दिल्ली रहता हूँ। तो ऐसे शॉर्टकट में ही बात होती है। तो कभी भी किसी बात का ऐसे करके रिप्लाई मत करें। जब आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो आप उसका जवाब कुछ ऐसे दे सकते हैं कि मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। तो सामने वाला फिर आपको बोलेगा मैं भी अच्छा हूँ, आप कहाँ रहते हो। तो आप बोलिए कि मैं दिल्ली रहता हूँ, चांदनी चौक पे, जहाँ के पराठे बहुत फेमस हैं। तो सामने वाले का एकदम पराठे के हिसाब से कोई रिप्लाई आ जाएगा, ओ हाँ यार मैं भी गया था वहाँ पे, मैंने भी ट्राई करे थे, बहुत अच्छा था, ये था वो था, और ऐसे करके कन्वर्सेशन बहुत आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप 1 to 1 रिप्लाई करेंगे, एक एक वर्ड में रिप्लाई करेंगे, तो सामने वाले का इंटरेस्ट आपसे खत्म हो जाएगा। फिफ्थ टिप है अवॉइड ब्लूपर्स। ब्लूपर्स यानी कि छोटी छोटी गलतियां। एक बार क्या होता है, एक टेबल पे एक रेस्टोरेंट में काफी अमीर और कंपनी के बड़े टॉप रेटेड लोग बैठे होते हैं। तो वहीं पे एक वेटर जा रहा होगा उनके बगल से, और वेटर वहाँ पे गिर जाता है खूब सारा खाना लेकर। तो बाकी अगल बगल की जो टेबल्स होती हैं वहाँ से आवाज आने लगती हैं, कुछ लोग हंसने लग जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ओह क्या हो गया, कुछ लोग बोलते हैं अरे। तो ऐसे ऐसे नेगेटिव चीजें आने लग जाती हैं और वो वेटर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। फिर जिस टेबल पर सीईओ बैठे हुए थे, उनमें से एक सीईओ के पैर के पास आके आलू गिर जाता है, लेकिन वो सीईओ ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता थी कि अगर आप किसी के ब्लूपर्स को अवॉइड करोगे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो इंसान पहले ही एकदम नेगेटिविटी में आ रखा है। जैसे आपसे कोई गलती होती है तो आप एकदम डर जाते हो, आप एकदम शर्मिंदा हो जाते हो, और उसी टाइम पे अगर आपको कोई पिन पॉइंट कर दे, आपको उसी टाइम पे कोई सीख देने लगे, आपकी गलती महसूस कराने लगे, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आप और भी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो हमेशा लोगों की छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करें ताकि उनको अच्छा लगे कि इसने मेरी छोटी गलती को माफ कर दिया, और वो इंसान आपको अपना बहुत ही खास मानने लग जाए। टिप नंबर 6, नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। इमेजिन करिए कि आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं
जो अपनी पॉलिसी बेचने एक कस्टमर के यहाँ गया है। जो कस्टमर बहुत ही ज्यादा रेसलिंग का फैन है और जब आप उसके घर में गए तो वो टीवी पर रेसलिंग का मैच देख रहा है और आपको रेसलिंग के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है और उसने बात में आपसे कोई रेसलिंग की बात कर ली और आप वहाँ पे एकदम ब्लैंक हो गए। क्यों? क्योंकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था रेसलिंग में और ना ही आपको कुछ आता जाता था उसके बारे में, ना उसके रूल्स के बारे में पता था, कुछ नॉलेज ही नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि आपकी डील क्रैक होगी कि नहीं होगी? वो आपका इंश्योरेंस देगा कि नहीं देगा? उसके चांसेस बहुत कम है। चांसेस तब बढ़ जाते कि आप उसके पास जाते, वो मैच देख रहा होता और आपसे वो बात करता रेसलिंग के बारे में और आप उसको एक दो यूनिक चीजों के बारे में बता देते। रेसलिंग के बारे में एक हेल्दी डिस्कशन होता 10-15 मिनट, तो उसको एक आप में कॉन्फिडेंस होता कि यार ये तो अपनी कम्युनिटी का बंदा है, तो वो आपसे उसके इंश्योरेंस लेने के चांसेस 90 से 95% तक हो जाते हैं और आपका काम वहीं पे बन जाता। तो इससे क्या हमें पता लगता है कि हमें जिस फील्ड का इंटरेस्ट नहीं भी है, एटलीस्ट हमें उस फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत कुछ बातें बताने जा रहा हूं कि अनुसंधान और विश्लेषण के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं या एक वर्तमान की स्थिति पर भविष्य के चारों ओर प्रभाव की रेखाएं विश्लेषण करने में मदद करता है। विभिन्न गतिविधियों या सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करता है। प्रयोग और अनुभव की विधि की तुलना में यह विधि समय और धन की दृष्टि से अधिक उपयोग की चर्चा की गई है। अब इसमें कुछ ऐसे लाभ भी होते हैं इससे कि समय की बचत होती है और पैसों की बचत होती है। जब हमारा सही निर्णय लेते हैं, हम लोग सही निर्णय लेते हैं तो समय की बचत होती है और सही निर्णय लेने पर उसका कार्य करते हैं उसमें उसके प्रति, तो उसमें पैसे की बचत होती है। कम खर्च में हम निर्णय लेने की आवश्यकताओं के कारण हम संगठन की समस्याओं को बचाते हैं। और इसके बाद है संसाधनों का बेहतर उपयोग करना। स्पष्टता के बिना एक प्रक्रिया इच्छित परिणाम के लिए एक लंबी और अधिक जटिल यात्रा सुनिश्चित करती है और इसका शायद निराशाजनक परिणाम भी है। चाहे आप एक किसी नौकर के साथ या शिक्षक के साथ या विद्यार्थी के साथ निर्णय ले रहे हैं, यह सच है कि चयन तरीकों से उपयोग करने पर संसाधन हो पाता है। और नेक्स्ट है उत्पादकता बढ़ाना। हम कैसे उत्पादन को बढ़ाएंगे या स्कूल में कैसे बच्चों को बढ़ाएंगे, इस पर विचार करना। कर्मचारियों को प्रेरित करेंगे और प्रेरित के अनुसार उनके द्वारा उत्पादन की बढ़ोतरी किया जा सकता है। या स्कूल में शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाता है और उनके द्वारा बच्चों में बढ़ोतरी किया जाता है। समय बर्बाद नहीं होता उसमें और उनका प्रयास व्यर्थ नहीं जाते। दूसरों की समस्या की बर्बादी नहीं होती और कम समय में सफलता मिलता है। अब मैं कुछ आप लोग के बीच बनाने के लिए क्वेश्चन देना चाहता हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेंस। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एडोलेसेंस। और चौथा क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर दैट इंफ्लुएंस एक्टिविज्म डिसीजन मेकिंग। और पांचवा है राइट
अपना विचार समाप्त करता हूं। रोशन सर इसके बारे में एलसी एसटीएलसी रोशन सर आकर अपना विचार विमर्श करें। Okay, so a very big thank you to Ravindra sir, and once again this meeting has been a very successful event because of all the teachers and all the participants who have made it as a complete and full knowledgeable one. So I'm benefited to everyone. So decision making adolescence, hopefully we have seen that at the age of adolescence, most of children gets distracted by different things, and this is the age. The adolescence age is certain age, the teenage. In particular language, we can say that the teenage is a very bad age, because during this time only a child gets distracted from his real path. So it's our duty to teach them to make correct decision and to remain on the correct path. Okay? So with these words, I once again thanks each and everyone. Thank you everyone. Thank you sir. Thank you.